we extend a heartfelt welcome to our esteemed guest, Mr. Prashant Singh, who is the co-founder and CEO of Blue Planet XR Club. So please give him a round of applause for Prashant sir. I would like to call President of Mass Saraswati Public School, Mr. Vijay Singh, for welcoming to Prashant sir with Safa and Pat. Thank you so much, sir. I would like to call Mr. Harsh Malhotra, sir. Thank you so much, sir. I would like to call Mahavir, sir. A warm welcome to Mass Saraswati. Thank you so much, sir. Thank you so much. Education is a bridge to a brighter future. हम सब जानते हैं भविष्य की नींव इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान में हम सब क्या कर रहे हैं। सीखना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे मन कभी थकता नहीं है, मन कभी घबराता नहीं है और कभी भी पछताता नहीं है। जैसा हम सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ब्लू प्लैनेट इको एक्सआर क्लब के लॉन्च के लिए। जैसा कि हमने इस टर्म को सुनते ही हमारे माइंड में एक थॉट घूमने लगता है, इको एक्सआर क्लब। ऐसा लगता है, एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये है क्या। तो इको जैसे हम नाम सुनते हैं, हमें एकदम से रिमाइंडर होने लगता है, इको इज आवर एनवायरमेंटल सिस्टम, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसी से रिलेटेड ये टर्म है। बाकी हम सब के बीच में हमारे ब्लू प्लैनेट की टीम प्रेजेंट है, उनके सीईओ को फाउंडर प्रेजेंट है, इस सब से हमको बहुत अच्छे से ये बताने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल सर फॉर लॉन्चिंग इको एक्सआर क्लब। प्रिंसिपल सर, प्लीज कम। मिस्टर Brij Chauhan is our principal at Mass Saraswati Public School. I would like to call sir for inauguration of Blue Planet Eco XR Club.
Saraswati Public School. Our partnership with Blue Planet Eco Excelsior has revolutionized our educational system. The use of AR, VR, and AI technologies has sparked curiosity and enthusiasm among our students, making learning about sustainability dynamic and impactful. The immersive education has allowed students to interact with the content in new and exciting way, helping them understand and remember important concepts more effectively. So I want to give again a big thanks to Blue Planet Eco Excel Club. Now I would like to call Shiv, who is a student of class 6 of Ma Saraswati Public School, who want to share his own experience with this club. Now Shiv, please come. Good morning, all of you. Hello, I am Shiv Chauhan from Ma Saraswati Public School. Being part of EcoAxa Club has been an amazing experience using VR and AR to learn about climate, the environmental issues like climate change, biodiversity has made learning exciting and amazing. The impressive experience of using these advanced technologies has made learning exciting and engaging. So please join with EcoAxa Club. If you will not join with EcoAxa Club, we face many problems in our future. So I would say some lines in the way of poem. So let's start. ये ज़मीं बिक चुकी, आसमां बिक चुका, ये ज़मीं बिक चुकी, आसमां बिक चुका, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम, आंखें हरियाली को बरस जाएगी, बदलियां बन के बरस जाएगी, कुदरत के साथ खिलवाड़ किया हमने किया, हर कदम पे जान के भी जोखिम हमने लिया, अब बाग और बागवानी खरीदेंगे हम, अब हवा धूप पानी खरीदेंगे हम. Thank you and have a nice day. Thank you, Shiv, for sharing your experience. Now, I would like to call it's my pleasure to introduce the one and only Harsh sir. So give him a big round of applause. Mr. Prashant Singh, sorry, Mr. Harsh sir. So please come here. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Yes, we should be loud there. First of all, thank you so much. You people have come today. Today was a holiday. Yes, sir. So sorry. Right? So, but thank you so much, teachers, principal sir, for giving us honor here to meet you all and to launch our club. I will just take a minute to show you what EcoXR Club is. Eco Club हमने बहुत जगह पे सुना है. Eco Club क्या होता है? हम पौधे लगाएंगे, हम प्लास्टिक बचाएंगे, हम पर्यावरण को बचाएंगे. इसको हम Eco Club में डिफाइन करते थे. इसको निभाना चाहिए. Right? So XR जो है उस XR को एक्चुअल में अगर आपको पढ़ाने के लिए समझाऊं तो बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, जो रियलिटी के बिल्कुल करीब आपको ले जाता है. ऐसे ही क्लासेस में आप बहुत ढेर सारे टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट,
इन सबको इन्हीं के थ्रू जब पढ़ रहे होगे तो शायद आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा एक्साइटिंग लगने लगेगा। अभी सब्जेक्ट ये थोड़ा बोरिंग लगता है, करेक्ट? उसको एक्साइटमेंट बनाने के लिए शायद हम इस टेक्नोलॉजी का सो अगेन थैंक यू सो मच सर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम इनको एक साथ मतलब यहाँ पे ला पाए। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का यहाँ का वातावरण है एक साथ मतलब इस स्कूल में अच्छे से इन्वाइट करता है। यहाँ पे कल ऐसा है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, इंटरनेट ऑलरेडी मौजूद है, तो बहुत मेहनत कम करनी पड़ेगी। बहुत इस जगह पे रादर इस स्टैंडर्ड के स्कूल जरूरी नहीं कि हर जगह पे हो। तो हम पूरा कोशिश करेंगे सर कि इस लैब से कल इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बने। अभी तक तो साइंटिस्ट बनते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को समझाता हूँ। हमने क्यों 6, 7, 8 ही चुना क्योंकि वो एक ऐसी टाइम है इसके बाद नेक्स्ट एग्जैक्ट 10 साल के बाद आप किसी इंडस्ट्री में होंगे, किसी कंपनी में होंगे, आप जोड़ लो एग्जैक्ट 8-10 साल बाद आप कहीं ना कहीं पे मौजूद होंगे। और एनवायरनमेंट आज की तारीख में एक ऐसी फील्ड होने वाली है जिसको हम बोलते हैं कट अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अब चाहे एनवायरनमेंट आप मार्केटिंग कर रहे होगे उसमें भी काम आ रहा होगा, फाइनेंस कर रहे होगे उसमें भी काम आ रहा होगा, इंजीनियरिंग कर रहे होगे उसमें भी काम आ रहा होगा। इसलिए ब्लू प्लैनेट के इनको एक्सआर क्लब्स स्कूल में खोलने के लिए लाया है। थैंक यू सो मच आप सब लोग। Thank you, ma'am. Respected principal sir, chairman sir. यहाँ स्कूल में आने से पहले मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिकॉज मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो पिछले 15-20 मिनट में यहाँ का कल्चर और सर से 10 मिनट बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बहुत आई ओपनिंग है मेरे लिए, राइट? तो हमारे जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं अपने पर्सनल लाइफ्स में एज अ सोसाइटीज वी ग्रो, जैसे जैसे सर ने बताया 20-22 साल हो गए इस स्कूल को, तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ झेली होंगी इस स्कूल ने, इन्होंने, मैनेजमेंट टीम्स ने। लेकिन उन कठिनाइयों के अलावा जो एक कल्चर को इंटैक्ट रख पाए हम लोग इस स्कूल के अंदर और टेक्नोलॉजी और जो आगे बढ़ने की जो चाह रहती है उसको भी एक नई दिशा दिखा पाए, उन दोनों का समागम जो हुआ है इस स्कूल में, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। ये बहुत इजी नहीं रहता है किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए, लेकिन एक रूरल एरिया के कॉलेज में वो चीज़ और कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उतने रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, उतनी रिसेप्टिविटी नहीं रहती है, बट उसमें उस उद्देश्य से डटे रहना और आज इस स्कूल को यहाँ तक लाने में जो परिश्रम किया है वो सबके लिए बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं खुद इस संस्था का एक पार्ट बनने जा रहे हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। एक कई स्टडीज आई हैं ऑफ लेट हमारे एनवायरनमेंट के लिए वेयर दे से दैट वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु इज गेटिंग सो डीपली इंपैक्टेड बाय एनवायरनमेंट। Okay, we are the first generation, but that is not profound. The profound statement is we might be the last generation which can do something about it. Okay, तो ये जो कोर्स है ये केवल एक कोर्स नहीं है, ये एक मुहिम है जिसको हम लोग आप सब लोगों के जरिए एक फाउंडेशन देना चाहते हैं जिससे कि केवल 6, 7, 8 जो फाउंडेशन होता है हमारे अगले 30, 40, 50 साल की प्रोफेशनल लाइफ वहाँ से एक सॉलिड नींव दे पाए, एक फाउंडेशन दे पाए ताकि आप लोग इसको अपनी रोज की जिंदगी में जो है उसको उतारने की कोशिश करें और जिससे कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपकी सोसाइटीज है उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है। सो थैंक यू सो मच